প্রথমে আমি একটা সার্কিট ড্র করছি। তার আগে বলতে চাই, as this is class on diode. Diode symbol you all know, I think. It is symbolized as like this. The arrow sign shows which type. Devarpreet and all of you. P It side. is P. P side. And the N red type. side, N type. it shows N side. So what is the forward bias circuit? Forward bias is when it is connected to plus. So it is plus and minus. This is minus is connected to N and plus is connected to P. So this is called forward bias. So listen all of you. I will tell you what is the ideal condition. Ideal. Today first you have to learn what is ideal. Ideal diode. For ideal diode, when it is forward bias, it conduct current electricity with full. Yes or no? So in ideal diode, for ideal diode, the forward bias resistance is 0. You should remember this. फॉरवर्ड बायस में क्या होता है ना, आइडियल डायोड के मामले में उसका रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है, इसीलिए क्या होता है, करंट फुल फ्लो होता है। अंडरस्टैंड? इसीलिए एक रेजिस्टेंस भी लगता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। एंड इन रिवर्स बायस, व्हाट इज द रिवर्स बायस कंडीशन? रिवर्स बायस में क्या होता है ना, P के साथ माइनस कनेक्टेड रहता है। इट इज P एंड इट इज इन N, P के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। दिस इज रिवर्स, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। So in reverse bias, what happens? I am totally discussing today ideal case. As in reverse bias, ideally diode does not conduct current. Yes or no? So ideal cases in reverse bias, resistance of the diode is infinite. That means it will not conduct. This is ideal condition. All of you understand? Yes or no? Please reply. Now, what is the important thing? Whenever in any circuit diode is written, if nothing is written or no information is given, you have to assume that diode is ideal. Understand? As I will discuss, you will more understand. সবাই বুঝতে পারছো? মনামি and Anushmita, please reply. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ল্যাঙ্গুয়েজে কারোর কোনো প্রবলেম থাকলে বলবে, আমি দেখছি। আমি তো গুগল মিটে আরেকটা জায়গা থেকে ছিলাম, ওটা কোথায় গেল? জাস্ট এ মিনিট। Now I am drawing some circuit. All of you draw. This is A terminal. This is a diode which is named as D1. D1 is the diode. This resistance is 20 ohm. This is 40 ohm. This is 40 ohm. This is 20 ohm. This is 20 ohm. And there is another diode which is written in this way. This diode is D2. And this terminal is B. Okay. Now before telling you the question, I just want some information from all of my existing students. जरा पुरानो, जो पुराने स्टूडेंट है उन लोगों को तो मालूम है. I just want to ask the new students, particularly Aditya. Just let's see who are there. I am calling by names, especially Monami Das, Anushmita, Orindam and Aditya.
All of you, those who are able to respond, I think Aditya is in shopping mall now. Your parents told me, no problem. Other, I request to please reply. Do you know how to find out the equivalent resistance in a circuit? All the steps. বিশেষ করে মনামি, অনুস্মিতা, তোমরা কি কোনো রেকর্ডিং পেয়েছো ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কি করে বার করতে হয়? না স্যার, না স্যার। অনুস্মিতা, না। অরিন্দম, তুমি পেয়েছো তাই তো? অরিন্দম তো অনেকদিন হয়ে গেল। অরিন্দম, হাউ টু ক্যালকুলেট ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স ইন আ কমপ্লিকেটেড সার্কিট? অরিন্দম, প্লিজ রিপ্লাই। এন্ড পৃথা, দেবার্জিৎ, তোমরা তো জানো। সো প্লিজ অনুস্মিতা এন্ড মনামি, আমাকে তোমরা বলবে, আমি তোমাকে প্রিভিয়াস রেকর্ডিং পাঠিয়ে দেবো, বিকজ কেসিএল কেভিএল এই রেকর্ডিং গুলো তোমাদের লাগবে, ঠিক আছে? আমাকে মনে করে দেবে, আন্ডারস্ট্যান্ড? বিকজ ইউ নিড দিস, বিকজ অল দিস, বিকজ কেসিএল কেভিএল, equivalent resistance, this kind of numericals are very important for NEET and JEE. তুমি আমাকে তোমরা মনে করাবে, শনি রোববার দিন মনে করাবে ফোন করে, হোয়াটসঅ্যাপে ফার্স্টে মেসেজ করবে, তারপরে মনে করাবে, ঠিক আছে? কারণ এগুলো আমি 4-5 মাস আগেই করিয়ে দিয়েছিলাম। সো ফার্স্ট স্টেপ, আই এম জাস্ট ড্রয়িং এ পিকচার ফার্স্ট। বাকিরা তো জানো, তাও আমাকে একবার মনে করাতে হবে, বিকজ মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস ফরগেট। Suppose I am simple electrical, I am drawing a simple electrical circuit. Suppose this is 20 ohm, this is 10 ohm. এরকম অঙ্ক অনেকেই করেছো। 100 ohm, this is 30 ohm, this is 40 ohm, and suppose this is 60 ohm. This is 10 ohm. And this is 20 ohm. This point is A, this point is B, this point is C, and this point is D. In the question it is asked, find out the equivalent resistance between A and C. What is the first thing you have to do, Devarpreet? RAC क्या है ये जानना चाहते हैं। What is the first thing you have to do to find out the equivalent resistance between AC? Devarpreet and Arindam, please reply. The battery connected. Yes, very good. First, you have to connect a battery between the 2 points. यहाँ पर AC के भीतर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। तो क्या करोगे, AC के भीतर एक बैटरी लगाओगे। कैसे? बैटरी कैसे होता है? ऐसे, एनी टाइप ऑफ थिंग, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, ऐसे लगा सकते हो, या फिर उल्टा, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, एक ही होगा, है ना? तो आफ्टर दैट व्हाट इज योर ड्यूटी? फाइंड आउट द करंट पाथ। करंट ऐसे जाएगा ना, प्लस से निकलता है करंट, ये सब ऐसे जाएगा। इसके बाद डिवीजन होगा, ऐसे ऐसे होगा। यहाँ पर बी में कोई करंट नहीं जाएगा, बिकॉज ये खुला है, इट इज ओपन। Yes or no? After that current will pass in this way. Understand? अच्छा, फिर से एक और सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये थोड़ा सा सिंपल सर्किट और ड्रॉ कर, 10 ओम, 20 ओम, it is 10 ohm, this is 20 ohm, it is 5 ohm, it is 6 ohm, it is 5 ohm, it is 10 ohm. This point is no, ये कोई point नहीं है. This point is A and this point is B. Okay? ये तो separate ये numerical गया. Find out in this case the second circuit I have drawn here. Find out equivalent circuit between AB. मतलब RAB क्या होगा? तुम क्या करोगे? As per the rules, you have to connect a battery first between AB. RAB ऐसे लगाओगे? Yes or no? ताई तो देवारप्रीत? उसके बाद करंट देखोगे, करंट कैसे जाएगा. तो यहाँ पर दिख रहा है 6 ओम और 5 ओम के बीच और 10 ओम, ये तीनों में एक ही करंट जाएगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो अकॉर्डिंगली तुम लोग डिसाइड करोगे. तो इसमें और ऐसे कर सकते हो बैटरी. बैटरी को यहाँ पर हमने कैसे लगाया? ए के साथ प्लस, बी के साथ माइनस. ये सब नो. इसको तो तुम ऐसे भी लगा सकते थे ना. देखो हम ये इरेज कर दिए.
इसको तुम ऐसे भी लगा सकते हो, ए के साथ माइनस बी के साथ प्लस, है कि नहीं बोलो, रिजल्ट एक ही होता, बिकॉज दोज वर कनेक्टेड इन सीरीज, जहां पर करंट उल्टा दिशा में होता है ऐसा होता है। लेकिन देखो सब सीरीज में ही हो रहा है, 10, 5, 6 सब एक ही दिशा में हो रहा है, करंट उल्टा में जाएगा लेकिन सब सीरीज में ही होगा, है कि नहीं, अल्टीमेटली रिजल्ट यू विल गेट सेम। सो व्हाट आई वांट टू मेंशन यू इन दिस केस व्हेन ऑल द एलिमेंट, यहां पर देखो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है। सो व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर रेजिस्टेंस, इस तरह के सर्किट जो तुम लोग आज तक करके आए हो इलेक्ट्रिक सर्किट में, अगर वो सारी की सारी रेजिस्टेंस होगा तो तुम्हारा बैटरी का पोलैरिटी के ऊपर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, अगर ए के साथ प्लस बी के साथ माइनस करो तो सेम इक्विवेलेंट आरएबी का जो वैल्यू आएगा वो एक ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। That means I am telling you that the value of the equivalent resistance does not depend on the polarity of the battery you have connected. Understand? पोलैरिटी को अगर उल्टा कर दो, ए के साथ प्लस बी के साथ माइनस, तो वैल्यू में ना कोई चेंजेस नहीं होगा। ये कब नहीं होगा, जब सारे के सारी रेजिस्टेंस है। अब हम नेक्स्ट में जा रहे हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स दिया है इसका क्वेश्चन अब हम बोल रहे हैं, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, find out equivalent resistance between, very important numerical, ये सब करोगे तो बाकी सब एकदम खूब सोजा लग इजी लगेगा। between A and B, मतलब क्या जानना चाहते हैं, what is the value of RAB? Understand all of you? Yes or no, please reply. Yes sir. Yes sir. तो अकॉर्डिंग टू, देखो यहाँ पर दो आंसर आएगा, बिकॉज इफ यू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी द वैल्यू ऑफ आरएबी विल आल्सो चेंज। हाउ, आई विल टेल यू। ऑल ऑफ यू प्लीज गिव योर फुल अटेंशन, आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व इट नाउ। एक दो न्यूमेरिकल हम खुद करा देंगे, इसके बाद का तुम लोग करोगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज आवर फर्स्ट ड्यूटी, देवप्रीत एंड अनुष्मिता, अगर कोई समझ में नहीं आएगा तो हमको बोलना। फर्स्ट ड्यूटी, आई हैव टू कनेक्ट ए बैटरी। तो बैटरी हम ऐसे लगा रहे हैं, ए के साथ प्लस बी के साथ माइनस, ए और बी के बीच लगाना पड़ेगा ना, तो प्लस माइनस। अभी देखो करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अभी ध्यान से बोलो, हमने पहले ही बोल के रखा है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डायोड का रेजिस्टेंस 0 होता है, ये कंडक्ट करेगा फुल। रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या होता है, ऑन रहता है। ऑन, ऑन मतलब स्विच ऑन करो तो क्या होगा, पंखा चलेगा, लाइट जलेगा। इसका मतलब क्या है, लाइट करंट पास करेगा, डायोड विल कंडक्ट। डायोड को डी बोलकर हम लिख रहे हैं। और रिवर्स बायस में क्या होगा, डायोड इज ऑफ, इट इज नॉट कंडक्ट। नाउ इस मामले में जहां पर A प्लस और B माइनस है, तुम हमें बोलो, बस ये इतना तक जवाब हमें चाहिए, D1 ऑन है या ऑफ है। सी D1 का ये है P और ये है N, D1 का ये P है और ये N है। P के साथ क्या है, प्लस, दैट मीन्स D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं FB, F.B, मतलब D1 इज फॉरवर्ड बायस, मतलब इट इज ऑन। Yes or no? और D2 देखो, D2 क्या है, D2 इज रिवर्स्ड बायस, बिकॉज D2 का ये क्या है, एरो वाला P है और ये N। P के साथ कौन कनेक्टेड है, माइनस। तो P के साथ कौन, जब माइनस होता है तो क्या होता है, वो रिवर्स बायस होता है ना, ये है कि नहीं, ये P है, ये N है, फॉरवर्ड बायस है PN। रिवर्स बायस है P के साथ माइनस, तत्मत ये D ऑफ रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस इंफिनिटी। तो D2 क्या होगा, सो D2 is reverse bias, so D2 is what, off. Understand all of you, please reply. Anushmita, पहले वाला न्यूमेरिकल, I am explaining all the things so that you understand. ऑफ का मतलब क्या है, इसका मतलब इधर से कुछ भी करंट नहीं जाएगा, वो हम बाद में ला रहे हैं। तो करंट का पाथ हम ऐसे चूज करें, ऐसे जाएगा, ऐसे होगा, यहाँ पर करंट जाएगा,
देखो आइडियली रेजिस्टेंस जीरो क्या होता है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो, है कि नहीं? इसका मतलब उसका कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नीचे, इक्विवेलेंट वाला सर्किट नीचे ड्रॉ करेंगे, इसको हम इरेज नहीं करेंगे। तो हम ए पॉइंट को ऐसे लिखा, यहां पर इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब हम एक सिंपल तार देख रहे हैं, इसका तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है D1 का। यहां पर क्या है रेजिस्टेंस, 20 ओम, और इसका 40 ओम, नीचे वाला तो 40 है, और इधर बीच में कितना है, 40। ठीक है, अभी देखो ये वाला, अभी देखो D2 क्या है, ऑफ है, इसका मतलब ये तो कॉन्डक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, देखो करंट का पाथ इधर आएगा, इधर आएगा, अब यहाँ पर तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इसका मतलब क्या है, इस ब्रांच में अगर इसका मान लो हमने नाम दिया P B, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, बिकॉज D2 तो ऑफ है, D2 तो डायोड कॉन्डक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इधर से कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो सर्किट क्या होगा, ध्यान से देखो, इधर करंट आएगा, P में आएगा, P में आने के बाद ऐसे घूम के इधर से चला जाएगा। तो करंट का डेस्टिनी क्या है, बैटरी का नेगेटिव, तो ये 20 ओम इधर चला गया, और ये वाला क्या है, P से, ये तो ऑफ है, यहाँ पे तो कोई करंट नहीं जाएगा। दिस इज बी पॉइंट, तो हम इसको इरेज कर दें क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं है। दिस इज बी पॉइंट, ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, बिकॉज D2 इज ऑफ, यहाँ पर तो कोई, देखो D2 अगर ऑफ होगा तो 20 ओम तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, करंट ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। अभी ध्यान से देखो, करंट का पाथ तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ब्रांच होगा, यहाँ पर करंट डिवाइड होगा। अभी नीचे देखो, नीचे जो 40 है और ऊपर जो 40 है, ये क्या है, सीरीज में है ना, अनुष्मिता एंड ऑल ऑफ यू अरिंदम, ये 40 और ये सीरीज में है कि नहीं, अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई, अनुष्मिता एंड मोनामी, बुझते পারছো, एंड आदित्य, आदित्य तो ये 40 और ये 40 सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, 40 प्लस 40, सीरीज में होता तो रेजिस्टेंस प्लस होता 80, तो ए उधर तो 20 तो अलग से लिखा हमने 20, और नीचे ये 40 का इक्विवेलेंट कितना है, इसका ये नाम दे रहा है 80 ओम, 80 ओम, 80 ओम, ठीक है, और ये 20, ये क्या है, यही तो बी है। तो 20 और 80 क्या है, पैरेलल है। देखो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होता है तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे करके करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। R1 R2 दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 फॉर्मूला R1 R2 बाई R1 प्लस R2, आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड नो दिस। तो 20 और 80 दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका हम इरेज कर दे, ठीक है, ये तो हो गया। इक्विवेलेंट कितना होगा, 20 इंटू 80 बाई 20 प्लस 80, दैट इज 1600 बाई 100, दैट इज 16। तो इसका देखो, यहां से ये गया, यहां से ये गया, और नीचे एक ड्रॉ कर रहे हैं हम, लास्ट, दिस इज द लास्ट स्टेप, दिस इज ए, ये ए से कितना गया, 16, और इधर से 20, ठीक है। तो यहां पर देखो 16 और 20 क्या है, सीरीज में है, इट इज वेरी क्लियर एंड इजी। दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा,
36 plus 20 36 ohm. So one answer is, ये complete नहीं हुआ न्यूमेरिकल, क्यों बाद में पता चलेगा. One equivalent resistance is 36 ohm. All of you till now please reply, understand? Yes sir. Yes sir. I will make some more complicated circuit from this. यहाँ पर दूसरे केस क्या होगा, अभी ये न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ. All of you done? Please have a screenshot. I will again draw the circuit and make some change. अच्छा, ये तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है. All of you written or not? I will, because if I draw again it will take some much more Yes sir, time. लिखेছি sir. Yes sir, लिखेছি sir. All of you please reply. Anushmita, Arindam. স্যার এর মনে- পরে তার আগে কি কোনো স্লাইড আছে তার একটু দেখাবেন? না, এর পরে আগে তো বেসিক জিনিস বুঝিয়েছিলাম, অন্য কিছু নেই. এই অঙ্কটার একটাই স্লাইড. আচ্ছা All of you understand? Please take a screenshot and give me. স্যার এটা তো কারেন্টের মতো সেমই হচ্ছে, মানে কনসেপ্ট ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স, শুধু কি ডায়োডটা এখানে মানে এক্সট্রা অ্যাড হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না ওই সার্কিটের সাথে ওই সার্কিটটা বোঝানোর জন্য বলেছিলাম, এই সার্কিটটা টোটালটাই অন্য সার্কিট. আচ্ছা, all of you, Anushmita and Monami, please reply. Do you understand? And have a screenshot. সবাই স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছো? May I erase the circuit? Okay, I am erasing the lower portion. I will record. I am recording. দেবারপিত আমাকে মনে করাবে, আমি খুব এটা ইম্পর্টেন্ট রেকর্ডিং, আমি আপলোড করব এটা, ঠিক আছে? Yes sir. Yes sir. I am erasing the things. এই যে ইরেজ করছি না দেবারপিত, বুঝতে পারছো সময়টা লাগছে কত? ভালো হোয়াইট ট্যাপ লাগবে আমার. স্যার আপনি একবার মিনিমাইজ করে সাইজটা বাড়িয়ে দিন স্যার ইরেজারের. হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই মিনিমাইজ করে দেখুন স্যার, ইরেজার মানে ইরেজার সাইজটা বাড়াতে পারবেন. সাইজটা বাড়াতে পারবেন. থাক আবার কত, আবার করতে এটা না আমার খুব ইউজার ফ্রেন্ডলি লাগে না একদম. আবার করতে গেলে সব কিছু ভ্যাংচা, সবই হয়তো উড়ে গেল. ওই জন্য একবার আমি বাজে এক্সপিরিয়েন্স আছে, কালকে খুব প্রবলেম হচ্ছিল, ওই জন্য আমি রিস্ক নিতে চাইছি না. আপনি স্যার মাঝে মধ্যে অনেক কন্ট্রোল সেট করতে পারেন. अच्छा, निकले जाइए. अभी हम क्या करेंगे, इस ये ए के साथ प्लस था, अगर हम यहाँ पर माइनस कर दे तो तुम तो कुछ भी कर सकते है ना. हमने बोला था बैटरी लगाने का हमारा इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है बैटरी पर, लेकिन बैटरी का प्लस माइनस जो कि है तुम लोग पिछले न्यूमेरिकल्स में देखे थे, यहाँ पर तो कोई पाबंदी नहीं था. बैटरी का प्लस माइनस जहां पर ही रखो, चाहे ए के साथ माइनस हो या ए के साथ प्लस हो, वैल्यू तो सेम ही आएगा. यहाँ पर देखोगे सेम नहीं आएगा. पिछले बार हमने जो कराया था यहाँ पर, व्हाट वाज दैट, ए के साथ प्लस था, बी के साथ माइनस था, तब हमें 36 आया था. ये क्या था, जब ए टर्मिनल के साथ प्लस और बी के साथ माइनस था. अभी हमने क्या किया, ए के साथ माइनस, बी के साथ प्लस, देखोगे रिजल्ट नहीं आएगा सेम. क्यों, आई विल टेल यू and you will also understand. देखो इस मामले में तो करंट का पाथ अलग होगा. ए मां एक सेकंड, करंट इधर से जाएगा. अभी ध्यान से देखो, नाउ टेल मी व्हिच डायोड इज फॉरवर्ड एंड व्हिच डायोड इज रिवर्स. ध्यान से देखो, D1 के साथ बैटरी का नेगेटिव कनेक्टेड है, तो D1 इज रिवर्स बायस, सो D1 इज ऑफ. अंडरस्टैंड? एंड D2 का P क्या है, P पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो D2 इज फॉरवर्ड बायस, FB, सो D2 इज ऑन. इसका मतलब अगर हम इसको Q ब्रांच नाम दे, AQ, ये वाला ब्रांच यहाँ पर करंट नहीं जाएगा, बिकॉज D1 इज ऑफ,
अंडरस्टैंड? तो हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। ए वो वाला ब्रांच तो ऑफ है, वहां पर करंट नहीं जाएगा। और D2 क्या है? ऑन है, जिसका मतलब इसका रेजिस्टेंस 0। ये 40, ये भी 40, ये आया Q, इसका साथ 20, इसका इक्विवेलेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसके साथ है 20, D2 तो रेजिस्टेंस 0 है, दोनों को मिला दो, दिस इज B। एंड डोंट फॉरगेट द बैटरी टू कनेक्ट। तो यहां पर देखो ध्यान से, करंट का पाथ ड्रॉ करना कभी भी नहीं भूलना तुम लोग। ऐसे करंट आएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, यहां पर करंट डिवाइड होगा। तो ध्यान से देखो, इस 20 में, ऊपर वाला 20 में जितना करंट जाएगा, ये 40 में भी सेम करंट जाएगा, है कि नहीं? बिकॉज यहाँ पर तो कोई अलग ब्रांच नहीं है, 20 वाला डायोड D1 तो ऑफ है। दिस 20 एंड दिस 40 ओहम लिखना भूल गए, ये भी 40, ऊपर का 20 और ये 40, ये कैसे है? सीरीज में है? ये सर ना, प्लीज रिप्लाई। तो इसके बाद इक्विवेलेंट, ये 20 और 40 मिला दोगे, क्या होगा? सीरीज में 60 होगा। इसका मतलब 40 ऐसे 40 डायरेक्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं। 20 और 40 क्या है? 60। आई एम टेलिंग यू डोंट हरी, बिकॉज जल्दबाजी में गलती हो जाता है, हमने देखा है। और नीचे वाला क्या है? अगर तुम इसको नाम दो P, जो पिछले बार था, P और B के बीच देखो, P और B के बीच दो सर्किट है, दो रेजिस्टेंस, 40 20 दोनों को मिला दो 60। हम नाम दे रहे ताकि तुम लोगों को ऐसे नाम देकर करोगे तो गलती नहीं होगा। ऊपर में 20 प्लस 46, तो नीचे कितना है? 20, सिर्फ 20 है। यह मिलाकर चला गया B में। यस और नो? अंडरस्टैंड? अभी ध्यान से देखो, ये 20 और 40 क्या है? पैरेलल में है। करंट ऐसे आएगा, करंट का पाथ करके रखना ताकि गलती ना हो। ये 20 और 60 क्या है? पैरेलल। तो दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 R2 by R1 plus R2, दैट इज 20 into 60 by 20 plus 60, तो कितना हो रहा है? 1200 by 15 ohm, 80, तो कितना हो रहा है? 15 ohm. 15 ohm, 15। तो लास्ट स्टेप ए से गया 40, ओहमटा लिखी नहीं जाएगा नहीं तो, और इसका कितना है? 15। यह है B और यह है A। तो 40 और 15 क्या है? सीरीज में है, करंट ऐसे आएगा। तो RAB कितना होगा? 40 प्लस 15, दैट इज 55 ओम। अंडरस्टैंड? सो सेकेंड आंसर क्या होगा? इसका दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकलेगा 55 ओम। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? कब? जब A के साथ नेगेटिव और B के साथ पॉजिटिव बैटरी रहेगा। All of you understand? So if this kind of question is asked in your board exam और NEET JEE में, IIT एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आता है। अभी तो क्वेश्चन हर जगह पर एडवांस लेवल में आ रहा है ना? तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का दो आंसर होगा, 36 एंड 55 बोथ। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. yes, नाउ Yes, sir. आई विल चेंज द सर्किट और डिफिकल्टी लेवल एक बढ़ा देंगे हम। तुम सब लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो। आई विल मेक इट मोर डिफिकल्ट एंड इट विल मेक मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। I will not erase this because so that you can identify what is the change. All of you written? All of you have the screenshot? Monami, Anushmita? Please reply. Yes, sir. Yes, sir. Achha, I am going to draw another picture. 20, 40.
All of you should draw with me. ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी. फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. आर ए बी कितना होगा? नाउ all of you draw this picture first. I mean to say draw this circuit first. After that I will ask you some question. All of you done? Please reply. Do it quickly. All of you please reply. Anushmita, Arindam, Monami. All of you done? Please reply. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Now tell me what is the difference between this circuit and before this circuit. ये दोनों में क्या क्या चेंजेस दिख रहा है? I am not telling बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, ये हम नहीं पूछ रहे. What is the basic difference between these two circuit? ध्यान से देख के बोलो. Sir. कोई चेंजेस दिख रहा है? हाँ बोलो. হ্যাঁ স্যার D1 আর D2 মানে এবার একই সাইডে করেছে, মানে P সাইডটা তো একই সাইডে. Very good. D1 D2 মানে D2 টাকে घुरी দেওয়া হয়েছে. D2 का ओरिएंटेशन चेंज किया गया है. देखो D2 क्या था, यहाँ पर P साइड B के तरफ था, यहाँ पर N साइड B के तरफ है ना? Yes or no? This is the N side. N is connected to B and previous P was connected to B. Yes or no? यहाँ पर क्या है, ये P है और ये N है. यहाँ पर N B के साथ कनेक्टेड है. पिछले में क्या था, P B के साथ कनेक्टेड था. अंडरस्टैंड? दिस इज द डिफरेंस. अनदर डिफरेंस इज देयर. बोलो तो और क्या है? कुछ और चेंजेस भी है. बोलो. See all the resistances with full concentration. স্যার একটা 20 के 40 ओम করেছে. यस, यहाँ पर देखो ये रेजिस्टेंस था 20 ओम और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है 40 ओम. बाकी सब सेम है. ठीक है ऑल ऑफ यू. नाउ यू डू. नाउ I will not ask you to solve this numerical. These two numerical I will obviously help you and I will solve and I will show how to solve. Here you have the same procedure. You have to connect a battery. A के साथ प्लस, B के साथ माइनस, दूसरे में A के साथ माइनस, B के साथ प्लस. यहाँ पर भी दो आंसर आएगा. Here also you will get two answers. Today I am discussing the most difficult numericals. Next day it will be moderate and you will understand. You can after one or two numerical you can solve. But this kind of numericals তোমরা করেছিলে আগে? অনুস্মিতা, মনামি, প্লিজ রিপ্লাই.
Have you solved this kind of numericals previous? Orindam, Anushmita and Monami, please reply. Acha, they are not replying. Devarpreet, হ্যাঁ স্যার আচ্ছা একটা আচ্ছা নাও যদি করে থাকো তাহলে এটা সলভ করো। ইফ ইউ হ্যাভ ভেরি গুড দেন ট্রাই টু সলভ দিস। দেখি তাহলে কে কতটা পাচ্ছ। যে কোনো একটা করে দেখাও, নাকি আমি করিয়ে দেবো। মে আই সলভ দিস অর ইউ উইল ট্রাই? প্রিভিয়াস নলেজ ক্যান হেল্প ইউ, previous discussion can help you to solve this. Okay, let's try. আমি তোমাকে করে দিচ্ছি। হ্যাঁ বলো। স্যার আমি না এটা ঠিক ভালো করে বুঝতে পারছি না, একটু বুঝিয়ে দেবেন। আগেরটা তো বুঝেছো, এখন মানে সিম্পল লজিক। যখন ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকে তখন ডায়োড কন্ডাক্ট করে, যখন রিভার্সে থাকে ও কারেন্ট সাপ্লাই মানে কারেন্ট পাস করতে দেয় না, কারেন্ট ওর ভেতর দিয়ে যায় না, সেই জন্যই সব গল্পটা হচ্ছে। নাও सी आई एम ट्राइंग। ए के साथ हमने पहले माइनस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, माइनस ये वाला, उसके बाद प्लस करेंगे, कोई बात नहीं है। अगर ये माइनस ये प्लस रहेगा, इसका नाम D1 D2। तो D1 कैसे है? D1 का ये P है और ये N है। P के साथ क्या कनेक्टेड है? माइनस। इसका मतलब D1 क्या है? D1 इज रिवर्स बायस, यस और नो? सो इट इज ऑफ, D1 ऑफ है। D2 भी क्या है? देखो D2 का N के साथ क्या कनेक्टेड है? प्लस। तो D2 क्या होगा? ये भी ऑफ रहेगा, ये भी तो रिवर्स बायस है कि नहीं? बोलो। इसका मतलब अगर हम इसको नाम दे Q और इसको नाम दे P, तो AP ब्रांच ये ऑफ रहेगा और PB ब्रांच ये भी ऑफ रहेगा, यस और नो? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड सॉल्व विथ फुल clear conception, otherwise you will get confused and you will do some mistakes. तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा इसका? ए है ये, यहां से पी भी ए क्यू तो ऑफ है, तो नीचे वाला जाएगा, एक ही बात, इसको सीधा भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं है। 40 ये हुआ पी, P के ऊपर क्या है? ये है 40, ये क्या है? 20। नीचे तो ये ऑफ है ना, है कि नहीं? बोलो। नीचे तो D2 वाला ऑफ है, ये क्या आ गया? B। तो बैटरी कैसे कनेक्टेड है? ऐसे। तो थोड़ा सा हमने ऐसे ड्रॉ किया ताकि तुम्हें समझ में आए, नहीं तो तुम इसको ऐसे स्ट्रेट भी, इसको अब तुम स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हो। तो करंट ऐसे जाएगा, प्लस इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, सीरीज। इसका मतलब 40 40 20 सब सीरीज में है। तो तुम लोगों को समझने के लिए जो आसानी हो ऐसे हम ड्रॉ कर, अभी हम ऐसे कर रहे हैं। 40 40 क्योंकि सब सीरीज में है, और ये भी 20, ये है A और ये है B। फोर्टी 40 20 तो क्या है? RAB क्या होगा? 100 ओम। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस और नो प्लीज रिप्लाई। तो पहले एक आया विच इज 100 ओम व्हेन A is negative and B is positive. All of you understand? Yes or no please reply. Yes sir. Yes sir. পৃথাস বুঝতে পারছো? প্লিজ রিপ্লাই। মনামি and Anushmita. Yes sir. Okay, may I erase this circuit now? I mean to say this one, first वाला जो 100 ohm. May I erase this? Now
दूसरे वाला केस हम पढ़ेंगे अभी। क्या होगा? ए के साथ प्लस, बी के साथ माइनस, तब क्या होगा? करंट ऐसे आएगा। इस मामले में क्या होगा? देखो, बोलो कौन सा डायरेक्ट फॉरवर्ड, कौन सा रिवर्स, कैसा होगा? क्या क्या फॉरवर्ड रिवर्स होगा? बोलो ऑल ऑफ यू, बोलो देवरप्रीत। দুটো অন আছে। Yes, both the diode will be forward bias. देखो D1 का P बैटरी का पॉजिटिव के साथ है, D2 का N बैटरी का नेगेटिव के साथ, तो सब फॉरवर्ड बायस है। So D1 is forward bias, FP, so it is on. D2 is also forward biased, so it is also on. So both will conduct. यहाँ पर हर एक ब्रांच में करंट जाएगा, यहाँ पर भी करंट जाएगा, तो करंट का पाथ क्या होगा? पहले ये पार्ट जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, फिर इधर डिवाइड होगा, पी बी में एक जाएगा और इधर एक जाएगा, उसके बाद इधर होगा, ऐसे होगा। That means what will happen? All the branches will be active. So what will be the equivalent? Now see, when the diodes are forward biased, their resistance is 0. So what will be the circuit? इसका रेजिस्टेंस 0 है डायोड का, तो ये क्या है? 20 के साथ 0 सीरीज में है कि नहीं? 20 के साथ 0 सीरीज, दैट मींस 20 प्लस 0 इज हाउ मच? 20. सो आई एम राइटिंग 20. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? नीचे तो 40 है, बीच में P और Q के बीच में कितना है? 40. इधर तो कोई डायोड नहीं है, ये Q और ये P, इधर कितना है? 20. नीचे क्या है? 40 और डायोड 0 रेजिस्टेंस, 40 प्लस 0, तो ये भी 40. अंडरस्टैंड? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई. दिस इज B and this is a battery connected. Now tell me what you will do. कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है? नाउ टेल मी. All of you please reply. देखो, all of you please reply. After that I will tell you. This is the most difficult numerical of today's class, and it may be for semiconductor electronic device का सबसे हार्डेस्ट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल हमने जो बनाया है, देखो पिछले वाला कुछ किताब में है, ऑसवाल का किताब में है, इसको हम D2 का फेस चेंज कर दिया। हमने पहले ही बोला था D2 को घुमा के रख दिया और नीचे को 20 से 40 कर दिया। ये न्यूमेरिकल्स किसी भी किताब में, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, आई कैन गारंटी यू। नाउ बोलो क्या करोगे? प्रीवियस जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा यूज करो, बताओ देवरप्रीत क्या होगा? बैटरी तो कनेक्शन हो गया, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बोलो? I need response from your end. All of you, please reply. আমরা কি কেসিএল কেবল লাগাতে পারি? तुम्हें ठीक ही बोलছো, केसीएल केवीएल लगाना चाहोगे तो न्यूमेरिकल बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? देखो केवीएल लगाकर भी कोई बात नहीं होगा, क्यों बोलो तो? কারেন্ট তো লাগবে না স্যার, আমার রেজিস্ট্যান্সটা লাগবে, ওই জন্য একটা কারেন্ট तो लग जे, बिकॉज देखो इस बैटरी का तो तुम्हें वैल्यू नहीं मालूम है ना। यू हैव कनेक्टेड द बैटरी टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बैटरी? यू डोंट नो। Assuming B you can solve, but I am just giving you an example. ये जो पिक्चर तुम्हें दिख रहा है ना, 20 40 40 20 40, ये टाइप का न्यूमेरिकल कभी जिंदगी में करे हो? जस्ट रिप्लाई मी। अपने याददाश्त में सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दो, ये करे हो? कौन सा? दिस इज ए पिक्चर ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जस्ट रिमेम्बर, ये P था, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे दिख रहा है?
ऐसे P, ऐसे Q, ऐसे R, ऐसे S, बीच में एक रेजिस्टेंस रहता था, है ना। तो ये क्या है, ये P है, ये Q है ना, ये R है और ये S है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन क्या होता है, याद है? व्हाट वाज द बैलेंस कंडीशन? सर P by R equal to Q by S. यस, P बाई R इज इक्वल टू अगर Q बाई S होगा तब ये बैलेंस होता है। बैलेंस में क्या होता है ना, बीच में जो रेजिस्टेंस रहता है उसका कोई वो इनएफेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर सेम पोटेंशियल, तो यहाँ पर कोई करंट नहीं जाता है कि नहीं। यहाँ पर बीच में कौन सा रेजिस्टेंस, जैसे ये P और Q सेम नाम हो गया, इसको हम नाम को थोड़ा सा चेंज कर दे रहे ताकि तुम लोगों को कॉन्फ्यूजन ना हो। ये जंक्शन को हम XY नाम दे रहे, ठीक है। XY के भीतर जो रेजिस्टेंस, अगर ये बैलेंस है तो ये 40 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये रहना मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, ये रहना ना रहने का सब बराबर होगा। तो देखो P बाई R इज इक्वल टू हाउ मच, 20 बाई 40 है ना, और Q बाई S कितना है, ये भी 20 बाई 40 है। P बाई Q हमने निकाला और Q बाई S कितना है, ये भी 20 बाई 40, दोनों सेम हो रहा है ना, है कि नहीं। ये कंडीशन मैच कर गया। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। P बाई Q 20 बाई 40 यानी कि हाफ, और Q बाई S भी हाफ हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका मतलब ये 40 रहना ना रहना, ये कोई इसका कोई इफेक्ट ही नहीं, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, अनुष्मिता, प्रीता एंड ऑल ऑफ यू। इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा बिकॉज इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये जब होगा ये नहीं रहेगा, इसका हम मिटा दे रहे हैं। नाउ आई थिंक यू कैन सॉल्व, यस और नो। अभी क्या होगा, ये 20 और ये 20 क्या है, ऊपर का 20 सब सीरीज में है। अभी तो आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड सॉल्व। 20 और 20 सीरीज में है, तो ये A अगर है तो उधर क्या होगा, ऊपर 40 होगा, 40, और नीचे 40 क्या है, सीरीज में है। तो ये क्या होगा, इसका टोटल 80 ओम होगा, 40 प्लस 40, ये B है। तो बैटरी को मत भूलना, आई एम अगेन टेलिंग यू। तो अब 40 और 80 क्या है, पैरेलल में है, तो दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, एक लास्ट स्टेप 40 इंटू 80 बाई 40 प्लस 80, तो 3200 बाई 120 है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा बोलो तो, 26.67 এটা আসছে, দেখো তো ये आ रहा है इतना हो। হ্যাঁ স্যার ওই 80/3 টাই ওরকম আসছে, হ্যাঁ 26.6। Yes, so second answer is 26.67 ohm। इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल करोगे तो पहले ही दिन में हमने एकदम हार्डेस्ट लेवल करा दिया, नेक्स्ट दिन में तुम लोगों को इजी लगेगा। जेनर डायोड का कुछ कराएंगे। All of you understand? Anushmita, Monami, Auditorium. Hi sir. Hi sir. I have recorded this session, very important session this was. Next date, I will start. I need one more class for numericals on semiconductor electronics, और एक क्लास लगेगा जिसमें हम डायोड का बाकी न्यूमेरिकल्स करा देंगे, उसमें जेनर डायोड भी रहेगा, रिवर्स डायोड भी रहेगा, ठीक है। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी, अंडरस्टैंड। দেবারপ্রীত তুমি আমাকে সোমবার বুধবার দিন মনে করাবে, বুধবার রাতে আমি ইন্টারফারেন্সের আরো রেকর্ডিং পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা, হ্যাভ ইউ এনি ডাউট আফটার ভিউইং দ্য ইন্টারফারেন্স ভিডিওস? Let me save the recording, after that I am coming to all of you.